নমস্কাৰ মই প্ৰণিতা লৈ আহিছো মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ওয়াকফক লৈ উদাত্ত ভাষণ দিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে পইণ্ট টু পইণ্ট কৈ গল সকলো কথা কৈছে যে মুছলমানৰ ওপৰত আবেগত আঘাত হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে মছজিদ মাদ্ৰাসাবোৰ চৰকাৰে লক্ষ্য কৰি লৈছে মুছলমানক কিয় ইমান বেয়া পায় আসাদুদ্দিন ওৱেইছে প্ৰশ্ন কৰিলে সমান্তৰালকৈ আসাদুদ্দিন ওৱেইছে মহাত্মা গান্ধীৰ উদাহৰণ দি ফালি পেলালে ওয়াকফ বিল অমিত শাহৰ সন্মুখতে ওয়াকফ বিল ফালি পেলালে সদনৰ মজিয়াত আৰু ইয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশজুৰি তুলপাৰ লাগিছে বিষয়টো যে ওয়াকফখন হসাকৈ দুৰ্বল হৈছে নেকি ওয়াকফত 40টা সংশোধন চৰকাৰে আনিছে সকলোৱে জানে আৰু এই সংশোধনৰ জৰিয়তে কি হ'ব কি নহব তাক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে কিয় মুছলমানসকলে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিল কিয় তেওঁলোকে ভাবি আছিল যে তেওঁলোকৰ অধিকাৰবোৰ কাঢ়ি লৈ যোৱা হ'ব সমান্তৰালকৈ উলুটা মন্তব্য কৰিছিল অমিত শাহে কৈছে যে চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই সকলোৰে অধিকাৰ ভাগে থাকিব কেৱল কিছুমান সলনি হ'ব সেই কথা মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু আসাদুদ্দিন ওৱেইছে পইণ্ট টু পইণ্ট কৈ দিলে যে চৰকাৰে মিছা মাতি আছে ওয়াকফ দুৰ্বল হৈ গৈছে আৰু ওয়াকফৰ জৰিয়তে এতিয়া সম্পত্তিৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যোৱা হ'ব মুছলমানৰ ওপৰত এয়া যুদ্ধৰ এলান কৰা হৈছে বুলি কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে সবিস্তাৰে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ আসাদুদ্দিন ওৱেইছেৰ খহত অগ্নিহৰ্বাক হৈ পৰিছে ওয়াকফক লৈ লোকসভাত উদাত্ত ভাষণ দিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে পইণ্ট টু পইণ্ট সকলো কথা কৈ গৈছে ওয়াকফখন আচলতে এতিয়া কি হ'ব জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ উদাহৰণ দি অমিত শাহৰ সন্মুখতে ফালি পেলালে ওয়াকফ বিল এই চৰকাৰে মুছলমানৰ ওপৰত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে ক'লে চৰকাৰে মিছা কথা কৈ আছে আমাৰ একো ভাল নহয় একো লাভ নহয় ইয়াৰ পৰা এই বিলখন মুছলমানৰ ওপৰত আবেগৰ ওপৰত আঘাত বুলি কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে মছজিদ মাদ্ৰাসাক লক্ষ্য কৰি লৈছে চৰকাৰে যিটো কাম কৰিছে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পোৱা হৈছে যে মুছলমানক চৰকাৰে বেয়া পায় মুছলমানক কিয় ইমান বেয়া পায় মোদী চৰকাৰে এই প্ৰশ্ন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে ক'লে মুছলমানৰ প্ৰতি কিয় ইমান বেয়া মনোভাৱ মোদী চৰকাৰৰ কাৰণ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যিটো সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে মুছলমানসকলৰ এতিয়া যথেষ্ট বেয়া হ'ব আসাদুদ্দিন ওৱেইছেৰ কথা এয়া ওয়াকফৰ জৰিয়তে দেশৰ মুছলমানক দুৰ্বল কৰিব বিচৰা হৈছে বুলি কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে মুছলমানৰ অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে চৰকাৰে সেই কথা কৈছে এতিয়া মুছলমানৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে খৰ্ব হ'বলৈ গৈ আছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে পইণ্ট টু পইণ্ট কৈ গ'ল ওয়াকফৰ কথা সকলো কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে লোকসভাৰ মজিয়াত ওয়াকফক লৈ লোকসভাত উদাত্ত ভাষণ দিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে সম্পূৰ্ণৰূপে এই ওয়াকফক লৈ সকলো কথা স্পষ্ট কৰি কৈছে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ উদাহৰণ দি অমিত শাহৰ সন্মুখতে এই বিলখন ফালি পেলাইছে আৰু এই চৰকাৰে মুছলমানৰ ওপৰত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে বুলি কৈছে যিটো সময়ত সমগ্ৰ দেশত একতাৰ কথা কোৱা হয় যিটো সময়ত সমগ্ৰ দেশত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বুলি কোৱা হয় সেই সময়ছোৱাত কিন্তু মুছলমানসকল উপেক্ষিত হৈছে সেই কথা কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে হিন্দুৰ কথা কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে বৌদ্ধৰ কথা কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে জৈন ধৰ্মৰ কথা কৈছে বাকীবোৰৰ বাবেতো এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই কেৱল মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰতেই এনেকুৱা হৈছে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে লোকসভাত ভাষণ প্ৰসংগত আসাদুদ্দিন ওৱেইছে কৈ দিলে যে সকলোৰে বাবে যদি সমান অধিকাৰ তেনেহ'লে মুছলমানৰ অধিকাৰ ক'ত মুছলমানৰ লগত চৰকাৰে কি কৰিছে ওয়াকফৰ জৰিয়তে দেশৰ মুছলমানসকলকতো দুৰ্বল কৰিব বিচৰা হৈছে মুছলমানৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যাব বিচৰা হৈছে মুছলমানক সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্বল কৰি সকলো ফালৰ পৰা কোঙা কৰিব বিচৰা হৈছে মুছলমানসকলে নিজৰ ভাগত কি পাব একোৱে নাপাব তেওঁলোকৰ বাবে ওয়াকফ বৰ্ডখন দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া চৰকাৰে সকলো সিদ্ধান্ত ল'ব ওয়াকফৰ জৰিয়তে যিবোৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আছে সেই সম্পত্তিৰ অধিকাৰবোৰ মুছলমানে নাপাব ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ল সমগ্ৰ দেশত থকা কোটি কোটি মুছলমানৰ লগত অন্যায় হৈছে মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে এয়া যুদ্ধ হৈছে মুছলমানসকলৰ ওপৰত এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বেয়া কাম কৰিছে চৰকাৰে এই চৰকাৰে মুছলমানৰ ওপৰত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে বুলি কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে ভাষণ প্ৰসংগত আৰম্ভণিতে এই যুদ্ধৰ কথা কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে এই বিলখন মুছলমানৰ ওপৰত আবেগৰ ওপৰত আঘাত বুলি কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে লোকসভাত পইণ্ট টু পইণ্ট ক'লে ওয়াকফৰ কথা মছজিদ মাদ্ৰাসাক চৰকাৰে যে লক্ষ্য কৰি লৈছে সেই কথা কৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে মুছলমানক কিয় ইমান বেয়া পায় মোদী চৰকাৰে বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে ক'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ আৰু ভাৰতত যদি সকলোৰে বাবে সমান অধিকাৰ তেনেহ'লে মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰত অধিকাৰ ক'ত সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ উদাহৰণ দি আসাদুদ্দিন ওৱেইছে লোকসভাৰ মজিয়াতে ফালি পেলালে ওয়াকফ বিল অমিত শাহৰ সন্মুখতে এই কাম কৰিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে পইণ্ট টু পইণ্ট সকলো কথা কৈছে ইতিমধ্যে জানে সমগ্ৰ দেশজুৰি সকলোৱে যিহেতু ওয়াকফক লৈ প্ৰটেষ্ট কৰি গৈছিল আৰু লোকসভাত আসাদুদ্দিন ওৱেইছে ভাষণত কি উল্লেখ কৰিছে মুহূৰ্তত আমি শুনাব বিচাৰিছো सर ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर इबादत पर एक हमला है
नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर कि हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा। ये गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल के खिलाफ नहीं है जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर, आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ बाय यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ वाल औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर, अगर ये बात सच है आपकी तो फिर आपको एक कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो यह आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर, अब वक्फ बाय यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर, डिस्प्यूट तो है। मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है। तो सर, वक्फ बाय यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर? अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा
तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की इबादत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का, एक मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में है। मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ। अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है, मैं तो क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप जज बनेंगे, आप ही फैसला करेंगे, और जब तक आप फैसला नहीं करते वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो प्रोविजन डाल दिया आपने। अच्छा, अगर मेरा डिस्प्यूट एनक्रोचर से होगा सर, तो एनक्रोचर में तो आपने तो 107 को डिलीट कर दिया। आप रातों रात खाबिज को, एनक्रोचर को मालिक बना रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक मुंबई में एक बहुत बड़े दौलतमंद है, खोजा बरादरी का यतीम खाना था। उन्होंने 2004 या 5 में 22 करोड़ में खरीद लिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में है कि आप उनको मालिक बनाना चाहती है लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके। हमको बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। और सच्चर कमेटी ने सर 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की। आज हम 2025 में आ गए। क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो सर और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट। सर दिस बिल टेक्स एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, disempowers the waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. सर अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। फजल पुकाया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशो डिसोडेंडाई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता। तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान। क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लेगा, क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है, तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, वेयर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैज बीन लिमिटेड ओनली टू 3 कैटेगरीज contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 में
2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, आडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे, आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर आडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको, मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या आडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल है, हिंदू एंड का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3V सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए, ओरल वक्फ, ओरल अपॉइंटमेंट हैज sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. सर, आप क्लॉज 39 पर आ जाइए, 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि JSR का नारा लगाया, और वो JSR का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए क्लॉज 432, the creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर, आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं मुकम्मल कर रहा हूं, स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर, क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं,
सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं, अच्छा क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूं।